आज का प्रोग्राम जो है वो गज़ल पर था और इस किस्म के प्रोग्राम हम NYU में अक्सर करते हैं और उसी सिलसिले की ये कड़ी थी जिसमें अली अदनान साहब डैलस से यहाँ आए और उन्होंने आकर गज़ल और मौसीक़ी का जो बहुत एक अहम रिश्ता है बर्र-ए-सग़ीर में हम लोगों के लिए उस पर बहुत ही तफसील से बातचीत की और बहुत सी ऐसी बातें बताईं जिनका हमें बिल्कुल पता नहीं था, आम लोग भी नहीं जानते और मालूमात में भी इजाफा हुआ, बहुत लुत्फ़ आया। Hazrat Amir Khusro is the one who introduced the singing of ghazal in the end of the 13th, beginning of the 14th century in South Asia. And he trained two ladies known as Nusrat Khatun and Meher Afroz in the singing of ghazal. And they became musicians in the court of Alauddin Khilji, who was the second and most powerful ruler of the Khilji dynasty. Bam means something which is at a higher level, and usually courtesans and prostitutes would practice their wares from one level above the ground level. You used to have shops in red light districts, and then you had the kotas where the courtesans would sit so people could look at them, and if attracted they would go up. So Dukh Tarane Bam is the word that refers to them. And although a lot of people try to lump all women who entertain men in the same category, who entertain men for a living. Let's go to Tawaif. There are two types of Tawaifs. There is the regular Tawaif, who is the second in hierarchy, and her clients are four types of people. Five. One are junior officers of the East India Company. Number two, the Qazis, the caste, which is a caste of officers. The Sheikhs, which is a caste of tradesmen. The Gujjars, which is a caste of herdsmen. And the Jats, which is a caste of landowners. These five people were the clients of the Tawaifs. And then there were the Gharanedar Tawaifs, the highest form of Tawaif, which only served royalty, nobility, and people like the Viceroy of India. So those were the Gharanedar Tawaifs, and Umrao Jan was a Gharanedar Tawaif. Angik, Vachik, Aharyan, and Satavik. So the first ones are Angik. Angik Abhinay is acting that you do with your body. Hastak, the one you do with your hands, and Mukhaj, the one you do with your face. Okay? Vachik is acting that you do by speaking or by singing, using your voice. Aharya is what you see: makeup, clothes, jewelry, set, design. And Satavik is the spiritual, the emotional content style, where you will see Angik because she's standing and she has facial expressions and hands. Satavik because you will see how she feels. Aharya because the set is beautiful, her clothes are beautiful, and she's beautiful. And of course, then we have Vachik because she's singing. So let's experience all four Abhinay in this ghazal by Ghalib. Ram Jai Javanti,
Farhane Khan, who sang a Bol Baant Ang ghazal, and it's in Rag Malkons in Tal Teen Tal. Please listen to this. Bafez Aatish-e Gham Dil ke Daag Jal Utte. Bafez Aatish-e Gham Dil ke Daag Jal Utte. दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में, दिल के आईने में है तस्वीर यार। अरे जब जरा गर्दन झुकाई देख ली सजदा करके, सजदा करके कदमे यार पे कुर्बान होना, सजदा करके कदमे यार पे कुर्बान, यार पे कुर्बान होना, सजदा करके कदमे यार पे कुर्बान। बहुत अच्छा लगा और उनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही आला थी, बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो है उसमें बाकायदा गज़ल जो है वो गाई गई, गज़लें गाई गई। सलामत अली साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ क़स्म की गज़लें जिनको मुख्तलिफ़ तरीक़े से मुख्तलिफ़ रागों में सजाया गया था वो गाईं, वो पेश की।
आप सब अहबाब को बहुत शुक्रिया आप लोगों ने। मैं कुछ अर्ज करूँगा कि ये गज़ल गायकी पे प्रोग्राम था, तो इसके लिए ज़रूरी था कि थोड़ा सा क्लासिक टच के साथ गज़ल आप लोगों को सुनाई जाए, पेश की जाए।
और मैं अजरा का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आपको महसूस किया बहुत जल्दी। और ये प्रोग्राम हमेशा की तरह कम्युनिटी, हमारी जो पाकिस्तानी हिंदुस्तानी देसी कम्युनिटी है, वो उन्होंने आकर हमें इस प्रोग्राम में शमूलियत करके और इस प्रोग्राम को सजाया। और मुझे फ़ख्र है कि हम यहाँ NYU में होते हुए, न्यूयॉर्क सिटी में होते हुए उर्दू का इतना अच्छा और सकील काम जो है वो कर रहे हैं और लोगों को भी उसमें शामिल कर रहे हैं। शुक्रिया। आज यहाँ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में ताहिरा नकवी साहिबा ने जो यहाँ पे उर्दू लेक्चर है, सीनियर उर्दू लेक्चर, उन्होंने गज़ल की गायकी पे एक प्रोग्राम रखा, जिसमें पहले अली अदनान साहब ने बहुत तवील बल्कि बहुत ही एक्सटेंसिव हिस्ट्री थी गज़ल की, जो सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है। और इसके बाद सलामत अली ख़ान साहब जो मशहूर गज़ल गवाह हैं जी, उन्होंने गज़लें पेश की। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो तारीख़ी वाक़यात होते हैं, तारीख़ी प्रोग्राम होते हैं, इनको जितना ज़्यादा हो उतना रखना चाहिए, ताकि इससे हमारा कल्चर भी आबाद रहता है और एक सेंस ऑफ लिंकेज रहता है हमारे अपने मुल्क के साथ। तो बहुत अच्छा लगा इसमें पार्टिसिपेट करके और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे। बहुत शुक्रिया। जो प्रोफेसर ताहिरा नकवी ने मुनक्कद किया वो बेहद दिलचस्प था, बेहद इंफॉर्मेटिव था। हम लोगों ने उसको बेहद इंजॉय किया है। अली अदनान साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें गज़ल और गायकी के बारे में आज जो एजुकेशन दी है, वो उम्मीद है कि हमें एटलीस्ट कुछ परसेंटेज तो याद रहेगी। और फिर सलामत अली ख़ान और अज़रा रज़ा के जो गाने थे, तो आज तो बहुत तबीयत खुश हुई है, परदेश में लगा है कि अपने मुल्क में वापस पहुंच गए हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। ज़ेबा, बस ताहिरा के प्रोग्राम हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। ये तीसरा मैं अटेंड कर रही हूँ, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेशनल। और अली साहब और सलामत साहब, अज़रा, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। थैंक यू वेरी मच, इट वाज वंडरफुल। Hi, assalamu alaikum. My name is Sangeeta. I'm the Hindu chaplain here at NYU, and I just attended an amazing ghazal lecture as well as performance. The lecture was given by Ali Adnan, and the ghazal concert was given by Salmat Ali Khan, which were both phenomenal. I really enjoyed the lecture because it gave a history of Hindustani music, gave a history of ghazal, where it started, how it blended together cultures, as well as the history of it and how it went into the West, who popularized it, why the British came, and how ghazal became popular. It's very interesting lecture, and what I appreciated most about this lecture was the fact that anybody walking into the auditorium could get a clear understanding of what ghazal is. That's what made Mr. Ali Adnan's lecture so amazing. And the concert, of course, ghazal music is beautiful because it speaks from the heart, speaks from the soul. And Ustad was Salamat Ali Khan is amazing, such a beautiful voice. I'm so glad I was able to attend this program. I hope and pray that this lecture and this concert series is shown again in other colleges, universities and other platforms as well. गज़ल के बारे में नहीं जी, गज़ल बहुत बड़ी चीज़ है, नॉलेज कम है मेरे पास, पर मुझे शौक़ बहुत है मौसीकी का, शायरी का, अदब का। तो काफ़ी अरसे से मैं पढ़ रहा हूँ, काफ़ी अरसे से इस पे लिखता भी हूँ और लेक्चर भी देता हूँ। वैसे मेरा पेशा फ़र्क है, मैं इंजीनियर हूँ मोबाइल टेलीफोन्स का। ज़बरदस्त। ये तो कहाँ से आपने लर्न किया सारा कुछ? जी, बचपन से सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो माहौल था वहाँ पे शायरी, मौसीकी और अदब को बहुत अहमियत दी जाती थी। और बचपन से ही मैं माँ बाप के साथ अच्छे कॉन्सेप्ट सुनने जाता था, अच्छे मुशायरों पे जाता था और अच्छे लोगों में उठता बैठता था। आपने तो सारा ख़जाना जमा किया हुआ है अपने अंदर। नहीं जी, मैं अल्लाह का करम है कि मैं पढ़ता बहुत हूँ और वक्त ज़ाया नहीं करता। जो वक्त मिलता है या रिसर्च में या पढ़ने में लगा देता हूँ। दूसरा, जिस चीज़ का शौक़ हो इंसान को, वो तो आ ही जाती है। और आपने चॉइस बड़ा अच्छा किया, और जिस चीज़ के बारे में जो एग्जाम्पल के तौर पे आप प्ले कर रहे थे,
ख़ासतौर पे नूरजहाँ जी, और उससे पहले कुछ ख़वातीन थी जिनका मैंने कभी सुना ही नहीं था। जी, मैं चाह रहा था कि पुराने और नए और जो बड़े उस्ताद हैं, बड़े गाने वाले हैं, उन सब का थोड़ा थोड़ा हम गाना भी सुनाते हैं। तो गौहर जान का, मलिका जान का, इकबाल बानो का, मलिका पुखराज का, खुर्शीद बेगम का, सबके हमने थोड़े थोड़े आइटम सुनाए। और ये दरबार में जो लेडीज़ गज़ल से, संगीत से रिलेटेड थी, उनका भी एक रिस्पेक्ट थी। और लेकिन आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि बहुत से मज़हब के लोग उनको कुछ बहुत नीचे करके उनके बारे में बात करते थे। देखिए, औरतों की इज़्ज़त अगरचे हमारे दीन का हिस्सा है, हमारी तारीख़ का हिस्सा नहीं है। और इसीलिए मैंने नुसरत खातून का, मेहर अफरोज़ का जिक्र किया कि वो पहली ख़वातीन थीं जिन्होंने सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गज़ल गाई, लेकिन तारीख़ में उनका नाम नहीं मिलता, इसलिए मैंने सोचा कि उनका नाम भी आज ले दें। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे नाज़रीन को, कोई चीज़? जी, बस यही कहेंगे कि प्यार से गाना सुनें, प्यार से शायरी पढ़ें, प्यार से अदब पढ़ें, प्यार के अलावा और कुछ ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, NYU से अरशद और मेरे साथ जनाब उस्ताद सलामत अली साहब, आपने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। माशाल्लाह, पाकिस्तान से आप यहाँ हैं और एक उस्ताद की मैं समझता हूँ कि यहाँ जो कमी है आप बहुत अच्छी तरह पूरी कर सकते हैं। आप नए लोग को चाह रहे हैं आपकी तरफ, माशाल्लाह। मेरा ख्याल है ऐसा कुछ यहाँ पे हर आदमी तो किताब उठाए फिर रहा है और गा रहा है। अच्छा। सीखना कभी नहीं चाहता, इसलिए मैं ये करता भी नहीं। हालांकि हर काम में, हर प्रोफेशन में बहुत बारीकियां हैं। हमारे साहब, मसला ये है कि हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, उसको बहुत ज़रूरत है आर्ट्स और कल्चर की तरफ आने की। जो जाहिलियत हमारे यहाँ है और हराम हलाल के चक्कर में पड़ के हम झूठ बोलते हैं। नबी हमारे हुए हैं दाऊद अलैहिस्सलाम, उन पर लहन जो है, उनके लहन से आप देखें कितनी तारीफ़ और तौसीफ़ करते थे वो रब की। बेसिकली तो मौसीकी थी। तो जो इतनी प्यारी चीज़ हो, अल्लाह ताला खुद हुस्न परस्त है, हुस्न को पसंद करता है, वो कैसे इसको हराम करार देगा? तो लोग पसंद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। ये एक ऐसी बात है जो करते हैं डरते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ये है ऐसा प्रॉब्लम। ये कोई ऐसी बात नहीं है। खूबसूरती खूबसूरत है, मिस यूज ना हो बस। सही है। आज कैसा लगा आपको, अप्रिशिएट किया गया इतना? जी, मैं सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत पसंद किया और बस थैंक यू कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।